بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول عشق ذات بائی پلوشا صافی کی قسط نمبر 6 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر آج موضوع گفتگو فردوس صاحب اور ان کی پیشکش تھی۔ آج شکیل چاچو اور ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ ٹیبل پر موجود تھی۔ بابا بڑی دلچسپی سے فردوس اور اپنی دوستی کے قصے سناتے رہے۔ کھانا کھاتے ہوئے سب کا اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا، سوائے مسکان کے۔ جیسے باقی گھر والے بابا کی باتوں سے مسرور ہو رہے تھے، ویسے ویسے مسکان کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت ستارہ سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے کئی دفعہ ابرو ریزی سے مسکان کو سکون سے رہنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ عرفان بھائی بھی اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ چکے تھے۔ سب کی باتوں سے اکتا کر وہ کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ امی، اسے کیا ہوا بھائی؟ امی نے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ سمرین آنٹی، ایسے سب کے سامنے بار بار رشتے کا ذکر آئے گا تو وہ شرمائے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ سب پھر سے ہنستے مسکراتے باتوں میں لگے۔ عرفان کے کچھ دیر پہلے کا گمان سچ ثابت ہوا تھا۔ کھانے کے بعد عرفان مسکان کے کمرے میں آیا تھا۔ مسکان بیڈ پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی اور سر گھٹنوں میں ٹکایا ہوا تھا۔ عرفان، کیا ہوا میری سونا کو؟ اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا۔ مسکان، بھائی مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ عرفان، شادی تو سب کرتے ہیں گڑیا، اس نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مسکان، لیکن مجھے ابھی نہیں کرنی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ کچھ کریں بھائی، بابا کو روکیے پلیز، اس نے عرفان کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ عرفان، اچھا تم فکر مت کرو، میں صبح بابا سے بات کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تک تم نہ کہو بابا تمہارا رشتہ نہیں کروائیں گے۔ مسکان ان کی یہ بات سن کر تر و تازہ ہو گئی۔ اس نے بھائی کا شکریہ ادا کیا اور عرفان اسے دلاسا دے کر باہر چلے گئے۔ اسے کچھ سکون ملا۔ اب وہ آگے کا لاہے عمل سوچ رہی تھی۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ فاروق اور شیزا ابھی تک جاگ رہے تھے، البتہ بچے سو گئے تھے۔ فاروق، کدھر گم ہو؟ تم آج کل نظر ہی نہیں آتے، لگتا ہے لندن کے رنگ میں رنگ گئے ہو، انہوں نے زہیب کو لانچ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ زہیب چہرے پر نقلی مسکراہٹ لاتا قریب آیا اور ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ زہیب، ایسی بات نہیں ہے، بس پڑھائی میں مصروف ہوں۔ آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ اب فاروق بھائی اپنے کام کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور وہ بے دہانی سے ان کی باتیں سنتے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ ان کے پاس سر کھپانے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آیا اور سر درد کی گولی کھا کر آنکھوں پر بازو رکھتا لیٹ گیا۔ اگلی صبح حارث صاحب بڑے تیش میں اس کے کمرے میں داخل ہوئے، انہیں روکنے امی اور عرفان بھائی بھی ان کے پیچھے تھے۔ ایک پل کے لیے تو مسکان یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایسی کیا غلطی کر دی جس سے بابا اتنے غصے میں آ گئے۔ حارث صاحب، تمہیں مسئلہ کیا ہے اس رشتے سے؟ اچھے لوگ ہیں، بڑا کاروبار ہے، نیک بیٹا ہے، ان کے ہاں رشتہ کرنے تو لڑکیوں کی لائن لگی پڑی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ فردوس نے تمہارا انتخاب کیا۔ وہ ان کے سر پر کھڑے تیز آواز میں بول رہے تھے اور مسکان کو اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بابا کی وحشتناک آواز سن کر چچی اور ستارہ بھی تیزی سے اس کے کمرے میں آ گئی۔ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا کوئی تم سے سیکھے جو اتنے اچھے رشتے کو رد کر رہی ہو۔ وہ اب ہاتھ اٹھائی اسے تردید کر رہے تھے۔ عرفان آگے آیا اور انہیں بیٹھ کر آرام سے بات کرنے کا کہا۔ امی بھی بابا کا بازو پکڑے انہیں کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کرتی رہیں۔ جیسے تیسے کر کے وہ بابا کو لاؤنج میں لے گئے۔ اس سارے منظر میں مسکان کی زبان سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ بابا کے کمرے سے نکلتے ہی وہ رونے لگی اور ستارہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گئی، اسے چپ کروانے لگی۔ کچھ آنسو تھمے تو ستارہ گویا ہوئی۔ ستارہ، مسکان، کیا تم زہیب کی وجہ سے منع کر رہی ہو؟ اس نے سپاٹ انداز سے سنجیدگی سے کہا۔ مسکان، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے لوٹنے تک اس کا انتظار کروں، اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ کر کہا اور آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ستارہ، کیا تمہیں پکا یقین ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا؟ میرا مطلب ہے وہ یہاں سے دور ہے، الگ ماحول میں رچ بس گیا ہے، اور زہیب ہے بھی جوان اور ہینڈسم بھی، پیچھے تو لڑکیوں کی تار ہوگی، ایسے میں اسے بگڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ صرف فون پر میٹھی باتیں کرنے سے پیار نہیں ہو جاتا۔ اسے مسکان کا ہاتھ تھام لیا اور مسکان بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ مسکان، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پر مجھے تو جب سے محبت کا مطلب سمجھ آیا ہے، میں نے زہیب کو ہی ہمسفر مانا ہے، اب اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کیسے کر لوں؟ وہ ستارہ کے گلے لگ کر ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ ستارہ، میں سمجھ سکتی ہوں، پر ایک مرتبہ میری بات پر غور ضرور کرنا۔ وہ اس کے آنسو پونچھ کر پیار سے سمجھا کر چلی گئی اور مسکان کا دل پھر ڈبا گیا۔ شام کو جب وہ رو دھو کر نکلی تو اسے لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے صرف عرفان بھائی نظر آئے۔ وہ منہ لٹکائے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ عرفان اسے دیکھ کر مسکرائے اور ہلکی سرگوشی کی۔ عرفان،
बाबा ने मुंह मना कर दिया। मुस्कान का चेहरा खिल गया, लेकिन अगले ही लम्हे फिर से मुरझा गया। इरफान, क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें? इसने टीवी बंद करते हुए रुख मुस्कान की तरफ करके कहा। मुस्कान, खुश तो हूँ, लेकिन मैंने बाबा को हर्ट कर दिया, इसने अफसोस से कहा। इसकी आंखें फिर से बहने लगी। इरफान, अरे नहीं सोना, बाबा को बस अपने बिजनेसमैन दोस्त को मना करना अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं तो बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी लाडली बेटी हो, तुम्हारी रजामंदी के बगैर रिश्ता नहीं करवाएंगे। इन्होंने मुस्कान के सर पर हाथ रखकर इसे जंबिश दी और वापस टीवी लगा दिया। मुस्कान को तसल्ली हुई। वो ज़ख्मी मुस्कुराकर ज़ोहेब को कॉल करने का इरादे से अपने कमरे में चली गई। इसने कमरे में जाकर ज़ोहेब को कॉल मिलाई और फिलहाल रिश्ता रद्द होने की खुशखबरी सुनाई। ज़ोहेब खुशी से फूले नहीं समा रहा था, इसका दिल बाग बाग हो गया था। इसकी खुशी देखकर मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ज़िंदगी एक दफ़ा फिर मामूल पर आ गई थी, लेकिन ज़ोहेब ने फैसला कर लिया था, अगली सर्दियों की छुट्टियों में पाकिस्तान जाकर अपने घर वालों से लाजमी अपने और मुस्कान के रिश्ते की बात करेगा। वो दोबारा किसी ऐसी कैफियत से दो चार नहीं होना चाहता था, वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस रात वो जिम से वापस आया और मुस्कान को कॉल मिलाई। फ़ोन बन जा रहा था, इसे शौक सा हुआ। इसने घड़ी को देखकर वक्त का तयन किया। ज़ोहेब, आज तो सारा की मंगनी है, इसी में लगी होगी। बेस्ट फ्रेंड के फंक्शन के आगे मोबाइल कहाँ याद रहेगा इसे। चलो सुबह बात करता हूँ, इसने सोचते हुए मोबाइल रखा और नहाने चला गया। अगले रोज़ से जल्दी यूनिवर्सिटी जाना था। कैरल के साथ मिलकर बना हुआ इसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद किया गया था। वो अगले मरहले के लिए इंतखाब हो चुका था। वो इस वक्त दोस्तों से और प्रोफेसर से दाद बटोरता कैरल के पास आया। ज़ोहेब, बहुत शुक्रिया कैरल, ये सब तुम्हारी मदद से हो पाया है। इसने कैरल से मुसाफा करते हुए कहा। कैरल, ये सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है, सारा नज़रिया तो तुम्हारा ही था। इसने ज़ोहेब के हाथ को जंबिश देकर कहा और दोनों अपने अपने जमात की जानिब बढ़ गए। इस दिन वो लाइब्रेरी नहीं गया था, वो सीधा घर आ गया था। इस पहर फ़ारूक का घर खाली पड़ा हुआ था। फ़ारूक नौकरी पर गया हुआ था और शिजा बच्चों को स्कूल से लाने के लिए गई हुई थी। इसने शुक्र अदा करते हुए फ़ोन निकाला और फिर मुस्कान को कॉल मिलाई, जो अब भी बंद था। इसे कुछ खटक महसूस हुई। इससे पहले तो कभी इतनी देर मोबाइल बंद नहीं रहा था। इसे फिक्रमंदी से लब काटते सोचा था। किसी ख्याल से इसने इरफान भाई का नंबर मिलाया, इन्होंने भी नहीं उठाया। ज़ोहेब, हो सकता है मेहमानों के साथ मसरूफ़ हो। इसने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। वो मुस्कान की खैरियत से होने की दुआएं करता बाहर निकल गया। अगली रात को डेविड और बाकी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने को रद्द करता वो घर आया और सीधा बेडरूम में चला गया। अब इसकी परेशानी हद से बढ़ रही थी। वो कॉल पर कॉल करता रहा, मुस्कान का नंबर बंद आ रहा था और इरफान उठा नहीं रहा था। इसे वसवसों ने हर तरफ से घेर लिया था। ज़ोहेब, कहीं इसके घर पर हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। इसका दिल डूबने लगा। इसकी मुस्कान की शदीद फ़िक्र होने लगी थी। कहीं इस तरह के साथ ही हारिस अंकल ने मुस्कान का रिश्ता भी तो नहीं करवा दिया। इसे अपनी हालत खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। इसने परेशानी से सर पकड़ लिया। इसके सर में दर्द हो रहा था। वो अब दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था। इसने इस तरह में कोमल को फ़ोन किया। कोमल, कैसे हो ज़ोहेब? कोमल ने कॉल उठाकर मसरूफ़ अंदाज में कहा। ज़ोहेब, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? इसे कोमल से मुस्कान के बारे में पूछते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, इसीलिए घुमा फिरा कर बात कर रहा था। सबके हाल हवाल पूछकर आखिर में इसने सवाल किया, हारिस अंकल और उनकी फैमिली ठीक है? दरअसल मैंने इरफान भाई को कॉल की थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसने सर झुकाए हुए वजाहत दी। कोमल, ठीक ही होंगे, मेरी भी बात नहीं हुई। हम तो उस तरह की मंगनी के सुबह ही इस्लामाबाद आ गए थे। मरियम बाजी के देवर की शादी है ना? अच्छा ज़ोहेब, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, माही रो रही है। इन्होंने अपनी 2 माह की बेटी को रोते हुए सुनकर कहा। ज़ोहेब ने खुदा हाफिज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। जिस मालूमात की तलाश के लिए इसने कोमल को फ़ोन किया था वो अब तक पता नहीं चल सकी थी और वो परेशानी से सर पकड़कर बैठ गया था। एक हफ्ते बाद आज 1 हफ्ता हो गया था। इसे अब तक किसी भी गोशे से मुस्कान का पता नहीं लग सका था। राब्ता ना होने के जिस कुर्ब और तकलीफ़ को वो 1 हफ्ते से अपने अंदर दफना रहा था, अब वो इसके चिड़चिड़ेपन और गुस्से की शक्ल इख्तियार करके बाहर आ जाता। वो दोस्तों के बीच भी चुप रहता, लाइब्रेरी में गायब दिमागी से बैठा रहता। बात बात पर अपने इर्द गिर्द लोगों से झगड़ा करना इसका मामूल बनता जा रहा था। यूनिवर्सिटी में भी इसकी कारकर्दगी बदतर होती जा रही थी। उसकी ये हालत दोस्तों में भी नुमायाँ ज़ाहिर हो चुकी थी। वो इस वक्त कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पी रहा था जब डेविड इसके पास आया। डेविड, क्या हुआ है? तुम बहुत बदल गए हो, ठीक से पढ़ भी नहीं रहे हो, हर वक्त गुमसुम रहते हो, और अब ये इसने ज़ोहेब के हाथ की तरफ इशारा किया, सिगरेट नोशी करने लगे हो। वो इसके जवाब के मुंतज़िर थे। ज़ोहेब इसे नज़रअंदाज करता सिगरेट के कश पड़ता रहा। डेविड, क्या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है? इसने मुतफ़िक्र अंदाज में पूछा। इस सवाल पर ज़ोहेब ने मुड़कर डेविड को देखा और बिना कुछ कहे वापस रुख मोड़कर सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा।
डेविड इसकी सुर्ख पट्टी नाक और सिगरेट पकड़े हाथ में लग्जिश को देखकर समझ गया। इसका अंदाज़ा सही निकला। इसका मुसलसल खामोश रहने पर वो उठ गया और वहाँ से रवाना हो गया। 2 हफ्ते बाद आज रात केरल के किसी दोस्त की बैचलर पार्टी थी। डेविड और जेनिफर भी साथ जा रहे थे और वो इस वक्त ज़ुहैब के साथ खड़ी इसका हाथ जोड़ते हुए इसे साथ चलने के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रही थी। कैरल, प्लीज़ ज़ुहैब, चलो ना, बहुत मज़ा आएगा, मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं। वो अब भी बेहिस खड़ा सिगरेट का धुआं अंदर खींच रहा था। कैरल ने मायूसी से एक और कोशिश की। सब कपल बनकर जा रहे हैं और मेरा कोई नहीं है, तो मेरे कपल बनकर साथ चलो ना। इसने ज़ुहैब के कंधे पर सर टिकाकर मासूम शक्ल बनाई थी। ज़ुहैब इसकी बचगाना हरकतों से उकता गया और इसे झड़कता हुआ लंबे लंबे ढक पड़ता वहाँ से चला गया। डेविड, इसकी बातों का बुरा मत मनाना, दरअसल इसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, इसने इसीलिए चिड़चिड़ा हो गया। इसने कैरल का मुंह बनते देखकर कहा। वो बात सुनकर जहाँ कैरल शॉक हुई वहीं जेनिफर की आंखें खुशी से फैल गई। जेनिफर, मतलब अब वो सिंगल है, अब इसकी कैरल के साथ सेटिंग हो सकती है, इसने खुशी से चहकते हुए कहा। कैरल अब भी बेयकीनी से इन दोनों को देख रही थी। डेविड, हाँ, कोशिश कर सकते हैं, इसने कुछ सोचते हुए कहा। कैरल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जेनिफर की तजवीज़ पर महजूज हो रही थी। जेनिफर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इस वक्त वो अकेला है, टूटा हुआ है, ऐसे हालात में एक सहारे की ज़रूरत होती है। कैरल आसानी से इसे तरकीब दे सकती है। जेनिफर अपने दिए हुए तरकीब पर फ़खरिया मुस्कुराई। डेविड अब भी सोच में था और कैरल को अपने और ज़ुहैब के बारे में सोच कर ही लुत्फ़ आ रहा था। अगले चंद रोज़ वो ज़ुहैब के मिजाज के मुआयना करते रहे। जब इसको ये पक्का हो गया कि इसकी गर्लफ्रेंड वाकई छोड़ गई है तो इन्होंने कैरल और ज़ुहैब की डेट नस्ब करने का प्लान बनाया। वो तीनों इस वक्त कैफ़े के गोल मेज़ के गिर्द बैठे आगे का लाहे अमल तय कर रहे थे। डेविड, ऐसा करते हैं कि मैं ज़ुहैब को अपने घर बुलाता हूँ, एक डिनर रखते हैं साथ में, दरमियान में तुम दोनों को अकेला छोड़कर मैं और जीनी बाहर आ जाएंगे। वो दोनों खुशी से डेविड के प्लान को सुनती सर हिला रही थी। जेनिफर, हाँ, आजकल वो स्मोकिंग तो करता ही है, तुम पिलाओगी तो ड्रिंक भी कर लेंगे और फिर सारी रात मज़े करना, इसने कैरल को मुखातिब करते हुए कहा। और कैरल खामोशी से इनका प्लान सुनती मसरूर हो रही थी। प्लान के मुताबिक रात के मिलने पर ज़ुहैब मान गया था। इस वक्त वो डेविड के घर सबके साथ मौजूद था। सब अपनी ड्रिंक और ज़ुहैब कोल्ड ड्रिंक पीते बातें कर रहा था। कुछ देर बाद डेविड और जेनिफर एक दूसरे को इशारा करते हुए वहाँ से उठ गए। ज़ुहैब के पूछने पर इन्होंने पास की दुकान से और ड्रिंक्स लाने का बहाना किया और तेज़ी से बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद वो मोबाइल निकाल कर देखने लगा। इस वक्त वो मायूसी से सितारा के सोशल अकाउंट देख रहा था, जहाँ इतने दिनों से वो रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। कैसे तैसे करके इसने उस्मान भाई से सितारा का नंबर मंगवा लिया था। एक सितारा से ही वो अपनी कैफियत दिल खोल कर बयान कर सकता था और एक इसी से ज़ुहैब को उम्मीद थी कि वो इसे सच बता देगी। पर अब वो ये देखकर दंग रह गया था। सितारा ने इसके मैसेजेस देख और सुनकर भी इसे जवाब दिए बगैर ब्लॉक कर दिया था। मुस्कान से बात करने की इसकी आखिरी उम्मीद चूर चूर हो गई थी। इसने कुर्ब से आंखें बंद करके एक आह भरी और मोबाइल सोफे पर पटक दिया। कैरल मौके का फ़ायदा उठाते इसके करीब आकर बैठ गई। ज़ुहैब ने जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला और सिगरेट होंठों में दबाकर जला लिया। कैरल, ज़ुहैब, मैं जानती हूँ दिल टूटने की तकलीफ़ क्या होती है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वो अब ज़ुहैब के चेहरे और गर्दन पर दिल फरेबी से हाथ फेर रही थी। ज़ुहैब बिना किसी रद्द-ए-अमल अपने अंदर उठते तूफ़ान को दबाए रखने की कोशिश में लगा हुआ था। तुम मुझे अपना ही समझो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो अब ज़ुहैब का गिरबान पकड़कर इसके गाल और गर्दन को चूमने लगी। ज़ुहैब ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। इसकी याद में मुस्कान का चेहरा उभरा। इसने आंखें खोली और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसे वहाँ घुटन होने लगी। इसकी सांस बेतरतीब हो रही थी। कैरल भी इसके साथ ही खड़ी हो गई और फिर इसे अपनी बाहों में भर लिया। कैरल, क्या हुआ ज़ुहैब, बैठकर करना अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है, खड़े होकर करते हैं। वो ज़ुहैब के होंठों को चूमने लगी थी कि ज़ुहैब ने एक झटके से इसे जबड़ा दबोच लिया। कैरल के मुंह से चीख निकली और हाथ हवा में झूलते रह गए। ज़ुहैब की अंगारा बनी सुर्ख आंखों से इसे वहशत होने लगी। ज़ुहैब, पता है कैरल, मुझे कैसा लग रहा है? अगर मैं 2 सेकंड और यहाँ रहा तो मेरे हाथों से तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। इसने शदीद गुस्से में तंतु तेज़ आवाज़ में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और पूरी कुव्वत से कैरल को परे धक्का धकेला। वो कराहती हुई मेज़ के साथ जा टकराई। तकलीफ से इसके आंसू निकल आए, पर आज ज़ुहैब के अंदर उबलता लावा फट चुका था। आज इसे किसी का दर्द, किसी की तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही थी। इसने जल्दी जल्दी अपना मोबाइल और सिगरेट का डब्बा उठाया। घर का दरवाज़ा ज़ोर से पटकता वहाँ से बाहर निकल गया। कैरल वहीं ज़मीन पर गिरती रोती रह गई। इसने पहले कभी ज़ुहैब को ऐसी दहशत में नहीं देखा था।
ज़ोहैब ने तेज़ कदमों से चलते माथे पर आए पसीने को साफ किया। सांस अब भी बेतरतीब हो रही थी। वो खुद नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। तेज़ रफ्तारी से चलता वो भागने लगा, एक सड़क से दूसरे पर, दूसरी से तीसरी पे। वो बिला वजह भागता जा रहा था। लंदन के पुल के पास पहुंचकर इसकी सांसें फूलने लगी थी। वो एक जगह खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। इसकी आंखें भीग चुकी थी, इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। चिल्लाते चिल्लाते वो आहिस्ता आहिस्ता बैठता चला गया और रो दिया। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता हुआ मुस्कान को पुकार रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों धोखा दिया? क्या गलती थी मेरी? सिर्फ तुमसे प्यार करना, सिर्फ तुमसे दूर रहना? मुस्कान, झूठी धोखेबाज, जाना था तुम, बता के जाती, ज़िंदगी तबाह कर दी मेरी। क्यों चली गई छोड़कर? ज़िंदगी ज़मीन निगल गई या आसमान? कहाँ गायब हो गई हो? क्यों चली गई हो? वो भीगी आंखों से आसमान को देखता अपनी तकलीफ़ को बयान कर रहा था। आंसू थमने के साथ इसे अपना दिमाग मफलूज होता हुआ महसूस हुआ। इसके सांसें अपनी रफ्तार पर आई तो वो उठा और बेबसी से लड़खड़ाते कदम करके जानिब बढ़ा दिए। सुबह का आफताब अपनी इसी तपिश के साथ लंदन के शहर पर तुलू हुआ। शिजा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और फारूक नाश्ता कर रहा था। जब शिजा ने उसे मुखातिब किया, शिजा, आपका शहजादा अब तक सो रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? मैं बता रही हूँ, आपको इसकी हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं नहीं रहने दूँगी इसे अपने घर में। इसके बच्चों को नाश्ता देते हुए खुफ़त से तरदीद की थी। फारूक इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए ज़ोहैब के कमरे तक आया और इसे पुकारते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों तक दस्तक देने के बाद भी अंदर से कोई आहट ना हुई तो वो घबरा गया और तेज़ी से अलमारी के दराज से चाबी निकाली। ज़ोहैब के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। शिजा बड़ी परेशानी के आलम में फ़ारूक के पास आई। ज़ोहैब अब भी बेहिस्सो हरकत, जूतों समेत औंधे मुँह बेड पर लेटा हुआ था। फ़ारूक के कई बार पकड़ने पर भी इसकी हरकत नहीं हुई थी। फ़ारूक ने इसे जंबिश दी और सीधा किया। फ़ारूक, ये तो बुखार से तप रहा है। इसने साइड टेबल से पानी की बोतल उठाई और ज़ोहैब को तपकते हुए इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। शिजा, जल्दी कुछ करें, कहीं मर वर गया तो इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा। इसे बेजारी से कहा। फ़ारूक, क्या कुछ भी बोलती हो? कभी तुम मौके की नज़ाकत को समझो। जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो, इन्होंने इस तरह से इसे झिड़कते हुए कहा था। अस्पताल में बीमार होने की वजह पढ़ाई का दबाव बताया। डैड और उस्मान भाई भी मतवातर से इसे फ़ोन करते रहे। मामा को फ़िलहाल इसके अस्पताल में दाखिल होने से अनजान रखा गया था। 3 दिनों से अस्पताल में रहने के बाद तबीयत कुछ बेहतर हुई और रुखसत होकर घर आ गया। नहा के तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। फ़ारूक भाई पहले ही इसकी बीमारी का दरख्वास्त क्लास में जमा करवा आए थे। आज इसके यूनिवर्सिटी आने पर सब हम जमातों ने इसकी खैर खबर पूछी और वो अब ठीक हूँ शुक्रिया कहता क्लास में जाकर बैठ गया। क्लास के बाद वो कॉरिडोर में खड़ा सिगरेट जला रहा था जब डेविड और जेनिफर इसके पास आए। हस्बत वक्त कैरल इसके साथ नहीं थी और इस वक्त ज़ोहैब का भी कैरल को जाकर मनाने का इरादा नहीं था। वो इसी स्पार्ट अंदाज में स्मोकिंग करता रहा। डेविड ने पहले इसकी इयादत की और फिर कैरल के मौजू पर आया। डेविड, वैसे तुमने कैरल के साथ अच्छा नहीं किया, इसने संजीदगी से कहा। जेनिफर, हाँ, वो तो सिर्फ तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी मदद कर रही थी। इसने भी गुफ्तगू में इजाफा किया। ज़ोहैब, मैंने नहीं कहा था इसे ऐसा करने के लिए, इसने इसी बेरुखी से कहा। डेविड, इतना ज़ोर का गिराया इसे, हाथ पर नील पड़ गया है इसके, इसने खफकी भरे अफसोस से कहा। ज़ोहैब ने जवाब दिए बगैर सिगरेट फेंकी और जूते से मसल दी और घड़ी को देखते हुए कहा। ये अंदाज़ देखकर जेनिफर को गुस्सा। जेनिफर, अगर इसका सर फट जाता तो? गुस्से से इसका रंग सफ़ेद पड़ गया था। ज़ोहैब, ये सब इसे बहकाने से पहले सोचना चाहिए था। ज़ोहैब अब सपाट अंदाज में सामने देख रहा था। डेविड, अच्छा बस करो तुम दोनों, इसने हाथ उठाकर दोनों को खामोश करवाना चाहा। जेनिफर, हम तुम्हारे खिलाफ तशद्दुद का केस कर देंगे, इसने उंगली उठाकर तंबीह की। ज़ोहैब, मैं भी तुम्हारे खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर दूंगा, इसने जेनिफर की आंखों में आंखें डालकर कहा। डेविड इन दोनों की बढ़ती लड़ाई से परेशान हो गया था। जेनिफर, समझते क्या हो खुद को? बहुत बड़े हीरो हो, लड़कियां मरती हैं तुम पर। अपनी औकात में रहो, तुम्हारी यहाँ हैसियत ही क्या है, 2 कौड़ी के पाकिस्तानी? इसका गुस्सा पूरी शिद्दत इख्तियार कर गया था। ज़ोहैब, जो अब तक नॉर्मल अंदाज में ज़बानी जवाब दे रहा था, अपनी कौमियत के बारे में सुनकर तैश में आ गया। इसके अब्रू तन गए थे। वो जेनिफर फट पड़ने वाला था कि डेविड जेनिफर के आगे आया और ज़ोहैब को पकड़ लिया। डेविड, बस बहुत हो गया, बस करो तुम दोनों। और तुम ज़ोहैब, कैरल के मामले में मैंने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन जेनी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके मामले में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, डेविड ने तेज़ आवाज़ में अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर कहा। ज़ोहैब ने जेनिफर को घूर के देखा जो अब डेविड के ओट में सहम कर खड़ी थी। इसने एक नज़र डेविड पर डाली और गुस्से में वहाँ से चला गया। 2 महीने बाद, ये 2 महीने भी ज़ोहैब के लिए पहले 2 हफ्तों के मुतरादिफ ही थे।
وہ मामूली ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा था। अपने घर के अफराद से इसकी रोज़ाना बात हो जाती, पर इसने दोबारा कभी हारिस अंकल या इनकी फैमिली के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। इसे खौफ था कि अब अगर किसी ने इसे मुस्कान के मुतालिक कोई बात बताई तो वो फिर आपे से बाहर हो जाएगा। इन 2 महीनों की कोशिश ज़ाया चली जाएगी। ऐसे हमने दिल पर पत्थर बांध लिए थे। अब से वो मुस्कान को कभी याद नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता इसके लिए दुआ ज़रूर करता, वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे। अपनी रूटीन के मुताबिक इसने यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया था, पर अब इसके साथ कोई दोस्त नहीं होता था। वो बिल्कुल तन्हा रह गया था। यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से रात देर तक किसी अकेली जगह पर खाली ज़हन बैठे रहना और फिर घर जाना, यही इसके मामूलात बन गए थे। उस रात वो जल्दी घर आ गया था। इस वक्त सब खाने से फारिग हो गए थे और वो फ़ारूक के साथ लाउंज में बैठा चाय पी रहा था। बच्चे भाग दौड़ में लगे हुए थे, लेकिन अभी से बच्चों के शोर से चिढ़ नहीं होती थी। ज़ोहेब, यही उम्र होती है खेल कूद की। बड़े होकर तो ज़िंदगी एक से बढ़कर एक तकलीफ़ देती है। इसने चाय पीते सोचा। शिजा कोफ्त के आलम में ज़ोर से बर्तन पटकती किचन में लगी हुई थी। इसने सोचा शायद फ़ारूक भाई से कोई झगड़ा हुआ है। शिजा, सुबह मिसेज़ रिचर्ड ने बताया तुम रात 3 बजे घर आए थे। देखो ज़ोहेब, ये शरीफों की सोसाइटी है, यहाँ ये सब नहीं किया जाता। सब मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। इसने अपने इसी अंदाज में कोई तमहीद बांधे बगैर कहा। फ़ारूक अपनी बीवी के रवैये पर शर्मिंदा हो गए। ज़ोहेब, मिसेस रिचर्ड को इतनी रात गए मेरी जासूसी करने के अलावा कोई और काम नहीं था? ज़ोहेब ने बीसी से पाट अंदाज में कहा। शिजा, तो गलत क्या है? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो वक्त पर घर आना होगा। पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो। मेरे बच्चों की तबीयत पर गलत तासुर पड़ेगा। इसने तैश में बच्चों की जानिब देख कर कहा, जो अपनी अम्मी को इतना तेज़ बोलते सुनकर खामोश बैठ गए थे। ज़ोहेब, अभी कौन सी अच्छी तरबियत दे रही हैं आप? ज़ोहेब भी अपने अदाब और तमीज़ की बलाए ताक रखकर यक टक जवाबी कार्रवाई करता रहा। शिजा, आप देख रहे हैं ये किस तरह मुझसे ज़बान लड़ा रहा है। अब की बार शिजा ने फ़ारूक पर वार किया और अफसोस से सर झटका। फ़ारूक, शिजा, तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ। वो इसके पास आया और शिजा के कंधे को थपकते हुए कहा, ज़ोहेब, आपको सिर्फ बातें करनी ही आती हैं। हमें तो बताया जाता था आपका बहुत अच्छा कारोबार है, बड़ा आलीशान घर है। इसने हाथ उठाकर चारों तरफ इशारा किया। सब झूठ है, ढोंग है। इसने तंजिया हंसते हुए सिगरेट निकाली। जहाँ फ़ारूक को ज़ोहेब के इस रवैये से दुख हुआ, वहीं शिजा का पारा आसमान को छूने लगा। शिजा, बस बहुत हुआ। अब मैं इस बदतमीज़ को 1 मिनट और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने उंगली उठाकर तंबीह करते हुए कहा और ज़ोहेब मज़े से सर ऊपर किए हवा में धुआं उड़ाता रहा। फ़ारूक, शिजा रहने दो, वो इस वक्त अपने होश में नहीं। फ़ारूक शिजा को कमरे के अंदर ले जाने लगा। शिजा, फ़ारूक की इस वजह से हमारी सोसाइटी में बदनामी हो रही है। हमारे घर का सुकून गारत हो गया है। आप पर अपने चचा के एहसानात होंगे जिसकी वजह से आप इनके लाडले को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझ पर नहीं है। निकाले इसे मेरे घर से। अब रोना शुरू हो गई थी और फ़ारूक इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। ज़ोहेब सिगरेट बुझाता अपने कमरे में चला गया। 10 मिनट बाद वो अपना बैग उठाए कमरे से बाहर आया। शिजा और फ़ारूक इस वक्त लाउंज के सोफे पर बैठे हुए थे और बच्चे अपने कमरे में चले गए थे। ज़ोहेब के हाथ में बैग देखकर फ़ारूक हड़बड़ा कर इसके पास आया और शिजा चुपचाप हाथ बांधे बैठी बलकोनी से बाहर बारिश बरसती देख रही थी। फ़ारूक इसे घर छोड़कर जाने से रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह फ़ारूक की एक भी सुने बगैर घर से निकल गया। 2 घंटे सड़क पर बेबसी से फिरते रहने के बाद वो पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। एक दरवाजे के आगे आके खड़ा हो गया। कुछ झिझकते हुए इसने दस्तक दी। कुछ पल गुजरे, दरवाज़ा खुल गया। इसने मासूमियत से सर उठाकर देखा। कैरल शब ख्वाबी के कपड़ों में मलबूस हाथ बांधे खड़ी थी। ज़ोहेब, मैंने फ़ारूक भाई का घर छोड़ दिया है। रात को इस वक्त मैं पापा से अलग अपार्टमेंट के पैसे नहीं मंगवा सकता। डेविड को कॉल की थी, इसने उठाया नहीं। शायद वो मुझसे अब तक नाराज़ है। तुम 2 दिन के लिए मेरा सामान अपने पास रख लोगी प्लीज़, तब तक मैं अपने रहने का बंदोबस्त करता हूँ। इसने रुदा सुनाकर पुरुम्मीदी से कैरल को देखा। वो सर को जंबिश देती सामने से हट गई और संजीदा अंदाज से इसे अंदर आने दिया। वो बैग घसीटता एक बेडरूम पर मुश्तमिल इस लाउंज में दाखिल हुआ और एक कोने में बैग खड़ा करके वापस मुड़ा। कैरल अब भी हाथ बांधे दरवाजे के पास पाट तासरात बनाई खड़ी थी। ज़ोहेब चलता हुआ इसके पास आए, कैरल के आमने सामने खड़े होकर सर झुका दिया। ज़ोहेब, मैं अपने सलूक के लिए शर्मिंदा हूँ कैरल। इन दिनों मैं बहुत शिकस्त खोरता था, बहुत मायूस था, डिप्रेशन का शिकार था, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर उतर गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो ये कहकर ज़ख्मी सा मुस्कुराया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैरल को वो आज कोई और ही ज़ोहेब लगा था। कैरल, ज़ोहेब, इसने ज़ोहेब को मुखातिब किया। वो दरवाजे पर रुक गया। तुम पूरी तरह भीग गए हो, बारिश के रुकने तक यहाँ ठहर सकते हो। ये कहते साथ वो ज़ोहेब का जवाब सुने बगैर ओपन किचन में चली गई और 2 मग निकाल कर कॉफ़ी बनाने लगी। कैरल माँ बाप की अलहदगी के बाद से
اکیلی رہتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل تک وہ جینیفر کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی اور اب ایک بیڈروم کے کرائے کے گھر میں۔ زہیب دروازہ بند کر کے گھر کے اندر آیا اور اپنا سوٹ کیس کھول کر کچھ کپڑے نکالے۔ جب تک وہ واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا، کیرل کافی بنا چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھا اور اپنی کافی کا مگ اٹھا کر پینے لگا۔ دونوں کے بیچ کی خاموشی بادل کی گرج کی آواز توڑتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ اس نے چپ چاپ اپنی کافی ختم کی اور جانے کے لیے اٹھا۔ بادل برس برس کر خالی ہو چکے تھے، آسمان روشن ہو گیا تھا۔ کیرل نے اسے دوبارہ روکنے کا نہیں کہا۔ وہ زہیب کے ساتھ دروازے تک آئی۔ زہیب: شکریہ کیرل، تم بہت اچھی ہو، تم نے واقعی ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اس نے دروازے کے پار کھڑے ہو کر سنجیدگی سے کہا۔ کیرل صرف مسکرا دی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت وہ لندن پل کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا جب اس نے اپنے پاس کسی کو بیٹھتے محسوس کیا۔ فاروق: کیسے ہو زہیب؟ اس نے ساتھ بیٹھ کر زہیب کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ زہیب: ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اس نے نرمی سے کہا۔ فاروق: میں تو ٹھیک ہوں، پر تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے، تمہاری یونیورسٹی گیا، وہاں سے پتہ چلا تم ایک ہفتے سے یونیورسٹی بھی نہیں گئے۔ ڈیوڈ سے پوچھا، پر اس سے بھی تمہاری کوئی خبر نہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس نے زہیب کو دیکھا، وہ سر جھکائے اس کی بات سن رہا تھا۔ تو وہ پھر سے گویا ہوا۔ میرا ایک دوست ہے پاکستانی سفارت خانے میں، اس کی مدد سے پولیس میں تمہارا نمبر ٹریس کروایا تو جا کر تمہاری لوکیشن معلوم ہوئی، اور یہاں آ کر دیکھ رہا ہوں تمہاری یہ حالت ہے۔ اس نے زہیب کے سامنے پڑے سگریٹ کے راگ کی طرف اشارہ کیا۔ زہیب اب بھی خاموش رہا۔ فاروق نے اس کے ہاتھ کو ہمدردی سے دبایا۔ اگر میری جگہ عثمان ہوتا تو کیا تم اس سے بھی اپنی پریشانی شیئر نہیں کرتے؟ میرے لیے تو تم چھوٹے بھائی کے جیسے ہی ہو، پر شاید تم مجھے اپنا نہیں مانتے۔ فاروق افسوس سے سر جھٹکا۔ زہیب: کیا آپ کو پیار میں کبھی دھوکہ ملا ہے؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فاروق ہلکا سا مسکرا دیا۔ تو بات یہ ہے زہیب، مجھے پیار کا تو نہیں پتا، لیکن زندگی سے بہت دھوکے ملے ہیں۔ تم نے میرے بارے میں جو کچھ کہا سچ کہا۔ اب تو تم جان گئے ہو یہاں ایک پائی کمانا بھی کتنا مشکل ہے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں آج سے 10 سال بعد خود کو اسی مقام پر دیکھتا ہوں جس کا تم نے سن رکھا ہے، اور اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہوں۔ زہیب نے سگریٹ سلگائی تو فاروق نے اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ زہیب اسے دیکھ کر مسکرایا اور اپنے لیے دوسرا سگریٹ سلگایا۔ فاروق: زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، وقت کسی کے جانے سے تھم نہیں جاتا، کبھی کبھی دوسرا راستہ کھلے بغیر پہلا بند نہیں ہوتا۔ تمہاری زندگی میں اگر محبت کا راستہ بند ہوا ہے، کیریئر کا راستہ تو کھلا ہے نا؟ زہیب یکٹوکی سے دیکھے جا رہا تھا۔ تم اس وقت اپنا سارا دھیان صرف پڑھائی پر لگاؤ، اس کو حاصل کرو جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ کسی ایک حادثے کی وجہ سے انسان جینا تو نہیں چھوڑ دیتا۔ میرا تمہیں یہی مشورہ ہے، وقت کے ساتھ چلنا سیکھو اور کبھی بھی ہار نہیں ماننی، باقی تم سے سمجھدار ہو۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے زہیب کو دیکھا۔ زہیب نے رخ پھیرتے ہوئے لمبی سانس بھری۔ زہیب: شکریہ بھائی، میں کوشش کروں گا، اور اس دن کے اپنے برتاؤ کے لیے آئی ایم سوری، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ فاروق: چلو اب گھر چلتے ہیں، اس نے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ زہیب: نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ فاروق: ضد مت کرو زہیب، میں نے شیزا سے بات کی ہے، اس نے خود مجھے تمہیں ساتھ لانے کے لیے کہا ہے، آئے تو میری بات مان لو۔ زہیب اضطراب میں مبتلا ہوا۔ چلو بھی یار، اتنے دنوں سے میرے بچوں نے کسی کو تنگ نہیں کیا، بور ہو گئے ہیں، فاروق نے شرارتی انداز میں ابرو چکاتے ہوئے کہا۔ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ سامان کہاں ہے تمہارا؟ فاروق نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ زہیب: کیرل کے گھر پر، اس نے فاروق کے ساتھ چلتے ہوئے بتایا۔ فاروق: کیرل؟ جھگڑا ختم ہو گیا تم دونوں کا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ زہیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاروق کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا اور فاروق کار سامان اٹھانے کیرل کے گھر کے راستے پر لے آیا۔ جیسے کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں۔ زہیب کے دل کے زخم بھر تو گئے، لیکن کسی نہ کسی کونے میں تکلیف آج بھی اٹھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے شیزا اور بچوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو گئے۔ وہ شیزا کی خواہش کے مطابق گھر جلدی آ جایا کرتا۔ فارغ وقت میں ان کے بچوں کے ساتھ باہر سبزہ میں کھیلتا۔ یونیورسٹی اور لائبریری کے علاوہ اس نے فاروق کی مدد سے ایک بیکری میں سیلز مین کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ ڈیڈ اور عثمان بھائی نے اس کو زیادہ پیسے بھیجنے کی پیشکش کی، لیکن زہیب نے منع کر دیا۔ اس کا ہر وقت یہی جواب ہوتا کہ وہ نوکری پیسوں کی ضرورت کے لیے نہیں، خود کو مصروف رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ کیرل نے اسے معاف کر دیا تھا، اور کیرل کے ہی کہنے پر ڈیوڈ اور جینیفر نے بھی اس سے ناراضگی ختم کر دی تھی۔ اس سیمسٹر میں اپنی کارکردگی بحال کرنے کے لیے اس نے پھر سے محنت شروع کر دی تھی۔ 6 مہینے بعد دوسرا سیمسٹر اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، اور آخر کچھ مہینوں کی محنت سے اس نے امتحانات کے نتیجے کا فاقہ کر لیا تھا۔
ज़ोहेब का डैड और उस्मान भाई के भेजे हुए पैसों पर कफ़ायत हो जाती थी, इसीलिए फ़ारूक की तरह ज़ोहेब भी अपनी तनख्वाह शीज़ा के लाख मना करने के बावजूद भी इसे दे देता ताकि घर खर्च में इसका भी हिस्सा शामिल हो। अगला सेमेस्टर शुरू होने से पहले 2 हफ्तों की छुट्टियां मिली थी और इन 2 हफ्तों में इन सब ने फ्रांस जाकर जेनिफर के घर तातीलात गुजारने का प्रोग्राम बनाया। ज़ोहेब को डैड की तरफ से इजाज़त मिल गई थी, वो इस सैर तफरीह के लिए खुश था। इस वक्त वो शॉपिंग मॉल में खड़ा अपने लिए ख़रीदारी कर रहा था जब इसका मोबाइल बजा। ज़ोहेब, हाय उस्मान भाई। वो अपनी कार्ड की अदायगी करके उस्मान की बात सुनते मॉल से बाहर आया। उस्मान की बात सुनकर वो दंग हो गया। शौक के आलम में मोबाइल इसके हाथ से छूटते छूटते बचा। चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और आंखें भीगने लगीं। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।